یہی ایک نام تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا زندگی بھر۔ اس نام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جیسے میری ماں اس دنیا میں نہیں رہے، میرا باپ مر گیا، سمجھ لو کہ اب تمہاری ماں بھی مر چکی ہے۔ درت زمل کے سرخ چہرے اور آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا۔ زمل درت کے عجیب و غریب رویے پر شوق نہیں تھی، وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے کمرے میں جانے لگی۔ تب اس کی کچن کے دروازے پر نظر پڑی، جہاں زرکون بھی خاموش کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ماضی میں اس گھر میں بہت کچھ دیکھتی آئی تھی، مگر ہمیشہ ہی خاموش رہی۔ زمل زرکون بی کو دیکھ کر بنا کچھ بولے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ واپس اسلام آباد جانا چاہتی تھی، اپنی مما کے پاس۔ درید سے دوری کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ زمل نے سوچ لیا تھا وہ درید کو یہاں سے جانے پر اپنے جانے کا فون کر کے بتا دے گی۔ یعنی زمل نے تمہیں کال کر کے میرے بارے میں یہ بولا ہے کہ میں اس کی لائف میں انٹرفیئر کر کے اس کو ٹیز کر رہا ہوں؟ کیف بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے بات کرتا ہوا واصف سے پوچھنے لگا۔ تم میری بات کا غلط مطلب مت نکالو کیف، میرا تمہیں سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت زمل ایبٹ آباد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہ اپنی لائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو تم کیوں ان دونوں کے بیچ میں مداخلت کر کے ان کی لائف ڈسٹرب کر رہے ہو؟ اب پلیز یہ مت کہنا کہ تم ایبٹ آباد سیر و تفریح کے لیے آئے ہو اور وہاں تمہاری زمل سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی ہے۔ واصف طنزیہ انداز میں کیف کو بولا۔ اتفاقیہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اب زمل اور اس کے ہسبینڈ کے بیچ نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، اب کال رکھو، مجھے ایک ضروری کام ہے اور پھر میں کل واپسی کرتا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کیف نے واصف سے بولتے ہوئے خود ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ واصف کو تھوڑا تعجب بھی ہوا کہ کیف اتنی آسانی سے اس کی بات کو سمجھ گیا، جبکہ دوسری طرف کیف بشیر کی آتی ہوئی کال ریسیو کر چکا تھا۔ سر، ہم کو اس گھر کا پتہ اور لڑکی کی تصویر مل گئی ہے، میں فکر مت کرو، آج شام تک وہ لڑکی آپ کے پاس ہوگا۔ بشیر سے کیف کل رات کو ہی ملا تھا۔ اس وقت کیف نے بشیر کو ملنے سے منع کر دیا، اس لیے بشیر کیف کو کال کرتا ہوا بولا کہ اس کا کام آج ہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، کام میں بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے اور آج شام کو ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ شام کے وقت وہ لڑکی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ جب تم اس لڑکی کو میرے گھر کے ایڈریس پر پہنچا دو گے تو تمہیں باقی کی رقم مل جائے گی۔ بشیر کو رقم کا اطمینان دلا کر کیف اپنے موبائل میں زمل کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ اتنے آرام سے پیچھا چھوڑ دوں گا میں تمہارا؟ اب تمہارا پیچھا چھوڑنے سے پہلے تمہیں بہت بھاری قیمت دینا پڑے گی زمل، تمہیں تو اب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بے شک تم اپنا داغدار وجود لے کر اپنے دید کے پاس چلی جانا، اگر وہ ایک داغدار لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو، اور مجھے پورا یقین ہے اتنا ظرف تمہارے دید کے اندر ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے ابتدا میں تمہارے قریب بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، بدلہ تم سے اور تمہارے دید سے، اس درید اعظم سے جس نے 60 سال پہلے میرے بھائی جیسے کزن کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ ایسا کیا کر دیا تھا ہمایوں نے تمہارے ساتھ، اور اگر تم اتنی پاک بی بی تھی تو اس کے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ بولو۔ کیف زمل کی تصویر سے بات کرتا ہوا بولا، پھر اپنے موبائل کی اسکرین پر زمل کی تصویر کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا دیکھنے لگا۔ ویسے ہمایوں کی بھی اتنی غلطی نہیں تھی، تمہارا حسن ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی تمہارا دیوانہ ہو جائے، جیسے تمہارے حسن کی کوشش نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا اور میں بدلہ سا بھول کر تمہیں اپنا بنانے کا سوچنے لگا۔ ایسے ہی درید اعظم بھی تو تمہارا دیوانہ ہے۔ سالہ شاطر نکلا، پہلے ہی اس نے نکاح کر کے تم سے اپنا مضبوط رشتہ بنا لیا۔ کتنی محنت کرنا پڑی تھی مجھے تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے، مگر سب بے سود رہا۔ اور بیچارہ ہمایوں، وہ تو مفت میں پٹ گیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، مگر میں ہمایوں نہیں ہوں۔ کیف زمل کی تصویر کو دیکھ کر غصہ کرتا ہوا بولا، سنا ہے جس سے محبت کی جائے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، لیکن تمہیں پانے کے لیے مجھے اپنی محبت کے ساتھ وحشی جانوروں جیسا سلوک کرنا پڑے گا۔ آج شام تمہاری کیف سے نہیں بلکہ کیف کے روم میں جانور سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد تمہاری لٹی پٹی حالت دیکھ کر تمہارا دید تمہیں خود قبول نہیں کر سکے گا۔ کیا کرو کہ تم رو پیٹ کر تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا اور میں ٹھہرا تمہارا دیوانہ تمہیں حاصل کر لوں گا۔ کیف آگے کی پلاننگ کرتا ہوا سوچنے لگا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا جب شام میں زمل کو اغوا کر کے اس کے پاس لایا جاتا۔ آفس سے آنے کے بعد اس کا دماغ پوری طرح الجھا رہا۔ آج سے اپنے مرے ہوئے باپ پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ سمن کو سیڑھیوں سے دھکا دینے کی غلطی جان بوجھ کر کی گئی تھی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائے، جیسے خاور کو قید کر کے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ اگر واقعی سمن کو راستے سے ہٹانا اعظم و تبندہ کی چال تھی تو درید نے سوچ لیا تھا کہ وہ تبندہ کو ایسے نہیں بخشے گا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو بھی قبر سے نکال کر اسے اس کے کیے کی سزا دیتا۔ انہی سوچوں میں درید کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زمل کا میسج اپنے نمبر پر موصول ہوا تھا، جس پر زمل نے اسے اپنے واپس جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ یقیناً وہ صبح والے رویوں کو ذہن میں رکھ کر درید سے خفا ہو کر واپس جانے کی بات کر رہی تھی۔
दुरैद जिमल के बारे में सोचता हुआ कुर्सी से उठा और ऑफिस से घर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अभी उसको निकलने में टाइम था। दुरैद उससे पहले ही जिमल के पास पहुंचना चाहता था। तुम वापस नहीं गए, अभी तक यहीं मौजूद हो? दुरैद अपने कमरे से बाहर निकला तो खादिम को ऑफिस में देखता हुआ पूछने लगा, साहिब जी, आपने ही तो मुझे थोड़ी देर पहले कॉल करके यहाँ आने को कहा था। खादिम अपनी जगह से उठकर दुरैद को उसकी कॉल याद दिलाने लगा। अरे हाँ, ऐसा करो, मुझे घर ड्रॉप करके गाड़ी को सर्विस के लिए ले जाओ, पेट्रोल वगैरह भी अच्छी तरह चेक कर लेना। रात में मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना है। वो रात में जिमल को अपने साथ वापस ले जाने का इरादा रखता था। दुरैद खादिम से बात करता हुआ पार्किंग एरिया में पहुंचा ही था कि अचानक सामने से एक आदमी भागता हुआ उसके करीब आने लगा। अभी दुरैद सोच ही रहा था कि उसके आदमी ने उससे पहले कहाँ देखा है। अचानक से उस आदमी ने अपनी चादर में छुपे हुए छुरे से दुरैद पर वार करना चाहा। दुरैद, जो कि उसके हमले के लिए तैयार नहीं था, मगर इस आदमी को पहचानने के साथ ही दुरैद ने अपने पेट की तरफ बढ़ते हुए छुरे को पकड़ना चाहा। इस आदमी के हाथ को पकड़ने के बाद वो आदमी दुरैद को बुरी तरह जख्म कर चुका था। ओह, ये क्या कर दिया तुमने? खाना खराब हो तुम्हारा, पकड़ो इस खबीस को, कोई हमारे साहिब को मार दिया इसने। खादिम एकदम चीखता हुआ बोला। 2 से 3 आदमी जो पहले से इस जगह पर मौजूद थे, इस आदमी के भागने से पहले उसे काबू कर चुके थे, मगर दुरैद तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए अपने पेट को हाथ से दबाए फर्श पर गिर चुका था। इसका खून रोको, जल्दी से अस्पताल ले जाओ इसे। अपनी आंखें बंद होने से पहले दुरैद के कानों से मुख्तलिफ आवाज़ें टकराईं। उसने अपनी तरफ से 3-4 आदमियों को बढ़ते देखा। बस इतनी ही देर वो अपने हवास कायम रख सका था। जिमल शावर लेकर निकली। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। थोड़ी देर पहले जरकून भी शारका कॉटेज की सफाई करके अपने घर के लिए निकली थी और ड्राइवर को उसने 4 बजे का टाइम दिया था ताकि वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सके। दुरैद को पहले ही अपने जाने का मोबाइल पर इन्फॉर्म कर चुकी थी। बस अब उसे अपना बैग पैक करना था। सुबह वाले रवैये के लेकर वो दुरैद से काफ़ी मायूस हुई थी। अब इस वजह से दुरैद से मिले बगैर वो यहाँ से जाना चाहती थी। आईने के सामने खड़ी होकर बालों में ब्रश फेरती हुई मुसलसल दुरैद के बारे में सोच रही थी। जब उसे महसूस हुआ कॉटेज में कोई दाखिल हुआ है। जिमल स्वेटर पहनती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। छोटी बीबी, वो साहब जी, उनको होश नहीं आ रहा। खादम जिमल को कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर घबराता हुआ बोला, क्या बोल रहे हो खादिम, क्या हुआ दैत को? जिमल खादिम के कपड़े पर खून देखकर उसका घबराया हुआ अंदाज देखकर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई। परेशान होकर खादिम से दुरैद के बारे में पूछने लगी। किसी बदबख्त ने दुरैद भाई पर बड़े से छुरे से हमला किया है और उन्हें मारने की कोशिश की है। हमने दुरैद भाई को इस अस्पताल पहुंचा दिया है, मगर उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और इस हमला करने वाले बदबख्त को भी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। खादिम परेशान खड़ी हुई जिमल को सारी तफसील बताने लगा। छुरी से हमला किया है? मेरे अल्लाह, कैसे हैं दैत? प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो खादिम। जिमल को फ़िलहाल इस बात से गर्ज नहीं थी कि वो आदमी पकड़ा गया है या फिर कौन था। वो सिर्फ दुरैद के पास जाना चाहती थी। खादिम जिमल को अपने साथ अस्पताल ले जाने की गर्ज से ही आया था। जिमल अपनी आंखों में आंसू साफ करती हुई खादिम के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर दुरैद आज़म, वो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ मुझे बताएं वो कैसे हैं अब? खादिम जिमल का अस्पताल लेकर आ गया था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए डॉक्टर के पास जाकर जिमल बेसब्री से उसे दुरैद के बारे में पूछने लगी। आंसू थे कि उसकी आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दुरैद की तकलीफ का सोचकर वो खुद भी तकलीफ महसूस कर रही थी। देखिए, आप इस तरह परेशान मत हो, उनकी कंडीशन अब खतरे से बाहर है। वैसे भी जिस चीज़ से आपके हस्बैंड पर हमला किया गया था वो हथियार ज़्यादा गहराई में पेट में नहीं जा सका, बस उनका खून ज़्यादा बह चुका है, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर जिमल को दुरैद की तसल्ली बख्श हालत के बारे में आगाह करता हुआ बता रहा था, जिसे सुनकर जिमल ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। मैं अपने हस्बैंड को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। जिमल डॉक्टर को देखती हुई बोली। वो दुरैद से सारी नाराज़गी सुबह वाले किस्से को भूल गई थी। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वह दुरैद को देखना चाहती थी। ऐसा फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है आप अपने हस्बैंड से मिल सकें, क्योंकि ये पुलिस केस था। मगर इसके बावजूद जिस कंडीशन में आपके हस्बैंड को लाया गया था, उन्हें फौरी ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन अब उनके होश में आने के बाद पुलिस उनसे उनका बयान लेगी, जिसके बाद ही आप या फिर कोई दूसरा उनसे मिल सकता है। डॉक्टर शाइस्ता लहजे में जिमल से कहता हुआ वहाँ से जा चुका था, जबकि जिमल वेटिंग रूम में चेयर पर बैठती हुई दुरैद के होश में आने की दुआ करने लगी। ओ मेरा भाई, खुदा को मानो, तुमको सर सर बोलकर हमारा खुद का सर दुख चुका है, मगर तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आ रही कि जब हम वहाँ पर पहुँचा तो मकान खाली था, वहाँ लड़की जैसा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं था। फिर हम क्या करता भला? घर के बाहर दरख्त से बांधा हुआ बकरी उठाकर ले आता तुम्हारे लिए। बशीर के आजिज़ से बोलने पर जब कैफ को उसकी बात समझ में नहीं आई तो बशीर मोबाइल पर कैफ से बात करता हुआ बिगड़ कर बोला, बकवास बंद करो अपनी। एक छोटा सा काम तुमको दिया था, मगर तुमसे वो भी नहीं हो सका। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम किसी काम के आदमी नहीं हो तो तुम्हें एडवांस रकम कभी भी नहीं देता। शराफत से कल आकर मुझे मेरी सारी रकम वापस कर देना। अब जो करना होगा वो मैं खुद कर लूँगा। प्लान के नाकामी पर कैफ को शदीद गुस्सा आया था। अगर जिमल इस वक्त उसके पास होती तो आगे जाकर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि अगर जिमल इस्लामाबाद पहुंच जाती तो उसकी किडनैपिंग का काम मुश्किल हो जाता।
यार ये पैसे वापस करने की बात को तुम कहाँ से बीच में ला रहा है? लड़की कोई अभी वहाँ से भागा थोड़ी ना जा रहा है, हम पूरी मालूमात करके आया है। उसका खावन ज़ख्मी है बेचारा और अस्पताल में मौजूद है। तुम ज़्यादा जज्बाती मत बनो मेरा भाई, तुमको वो लड़की चाहिए, हम तुमको लड़की ला कर देगा, बस थोड़ा सब्र कर लो। 2-4 दिन बाद लड़की तुम्हारे पास होगा, ये वादा है बशीर का। रकम की वापसी की बात सुनकर बशीर एकदम नरम पड़ता हुआ कैफ को समझाने लगा, मुझको काम वाले बंदे बस हैं। बशीर, तुम्हें सिर्फ मुझसे बातें बनाना आती हैं। कल सुबह तुम शराफत से मुझे वो एडवांस रकम ला कर दो, वरना मैं खुद आता हूँ तुम्हारे ठिकाने पर अपनी रकम निकलवाने के लिए। कैफ ने सोच लिया था अगर दुरैद ज़ख्मी था तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि वो खुद अंजाम न देता, इसलिए बशीर से अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करता हुआ बोला, खुदा को मानो यार, तुम आदमी है कि खच्चर। पहले तुम लड़की लड़की का रट लगाया हुआ था, अब तुम पैसा पैसा बोल रहे, हमारा दिमाग ख़राब कर दिया तुमने। लानत भेजता है हम यार तुम्हारे पैसे पर, कल ही तुम्हारा रकम तुम्हारे मुंह पर मारेगा। हमको तो अजीब ख़बर कर दिया तुमने। लड़की चाहिए, अगर लड़की चाहिए तो खुद हीरो बनकर जाओ और पकड़ कर लाओ। यहाँ बैठकर तुम हमको बातें सुना रहा है, और याद रखना जितना तुम बेचैन हो रहा है उस लड़की के लिए, वो लड़की अब तुमको कभी नहीं मिलेगा। ये बशीर की बद्दुआ है। बशीर अपने दिल की भड़ास निकाल कर राब्ता मुनक़ता कर चुका था, जबकि कैफ बशीर को बड़ी सी गालें देता हुआ अपने ड्राइवर को दिलत की तरफ भेजकर मुकम्मल मालूमात हासिल करने का इरादा रखता था, ताकि वह जिम्मल को खुद उठाकर यहाँ ला सके। अब इस तरह से क्यों परेशान बैठी हो? जिंदा सलामत हूँ तुम्हारे सामने। दुरैद अपने बेडरूम में था बैठ दुरैद अपने बेडरूम में बेड पर लेटा हुआ जिमल से बोला, जो कि इस वक्त रूहानी चेहरा लिए उसके पास बैठी हुई थी। जिमल और दुरैद को अस्पताल से हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। दुरैद के होश में आने के बाद पुलिस ने उससे बयान लिया था। इसके बाद ही जिमल दुरैद से मिली थी, और थोड़ी देर पहले डॉक्टर के इलाज समझाने के बावजूद दुरैद अपनी जिद पर कायम अस्पताल से कॉटेज में आ चुका था। आपको इस हालत में देखकर परेशान ना हूँ तो फिर और क्या करूँ? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है दुरैद, हम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बस आपकी कंडीशन थोड़ी बहुत स्टेबल हो तो हम वापस इस्लामाबाद चलेंगे। जिमल दुरैद की कंडीशन देखती हुई बोली। इस वाक़ये ने इन दोनों के बीच सुबह वाली तरक्की का असर ज़ाहिर कर दिया था। हमें और किससे ख़तरा हो सकता है मेरी जान? जिसने मुझ पर हमला किया वो तो इस वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने या परेशान होने की क्या ज़रूरत है? बल्कि आज रात तो तुम्हें मुझसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिमल को तसल्ली देने के साथ आखिरी जुमला दुरैद ने शरारत में जिमल का हाथ पकड़कर बोला, जिस पर जिमल दुरैद को घूरने लगी। इस कंडीशन में भी शौकियाँ सूझ रही हैं आपको? देख लिया आपने हीरो बनने का अंजाम? कितनी बुरी तरीके से जंगली बेरहम इंसान ने आप पर हमला किया है। जिमल अपना दूसरा हाथ दुरैद के ज़ख्म पर रखते हुए बोली, ये उसी शख्स का काम था जिसके दोनों हाथों को दुरैद ने बुरी तरीके से ज़ख्मी किया था। उसने मौका देखते ही दुरैद से अपना बदला लेने की कोशिश की थी। रिलैक्स हो जाओ जिमल, वो आदमी अब पुलिस की गिरफ्त में है। वैसे ही उसकी ऐसी कंडीशन से क्या मुराद है तुम्हारी? स्टेमिना चेक करना है मेरा तो ज़रा और पास आ जाओ, फिर इस कंडीशन में अपनी कंडीशन देख लेना। दुरैद बाज आने के बजाय जिमल के बालों की लटा खींच कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता हुआ बोला, बाज नहीं आना आपको दैद। जिमल दुरैद पर के चेहरे पर झुकी उसके होंठों को देखकर बोले, जिस पर वो दुरैद नफ़ी में सर हिलाता और जिमल का चेहरा देखता हुआ बोला, मुमकिन है बाज आ जाऊँ, मगर थोड़ा बहुत अपने दिल की मानने के बाद। दुरैद ने बोलते हुए जिमल के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और उसके होंठों पर अपने होंठ रखता हुआ अपने दिल की मानने लगा। दुरैद, आप इसलिए हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आए थे, बस अब पीछे हटें। दुरैद जिमल के सीने पर झुकी हुई अपने कमर से दुरैद का बाजू हटाते हुए बोली, मालूम है ना तुम मेरे लिए मेडिसिन का काम करती हो, ऐसे ही मुझे जल्दी जल्दी डोज मिलती रही तो मैं जल्द से ही याब हो जाऊँगा। दुरैद जिमल का ब्लश करता हुआ चेहरा देखकर दोबारा शरारत से बोला, और ओवरडोज होने से लेने के देने पड़ जाते हैं, अब सीधा लेटकर शराफत से सोने की कोशिश करें। जिमल उसकी आंखों में नाचती हुई शरारत को इग्नोर करके दुरैद का तकिया सेट करने लगी। इसके बाद कंफर्टर दुरैद पर डालने लगी। उसे डर था कि दुरैद की उल्टी सीधी हरकत की वजह से इसके पेट के जख्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, कि इसका जख्म अभी बिल्कुल ताज़ा था। तुम कहाँ जा रही हो? मालूम है ना तुम्हें आपके 24 घंटे तुम्हें मेरी आंखों के सामने रहना है। जिमल को बेड से उतरता हुआ देखकर दुरैद बेड पर लेटा हुआ से पूछने लगा। उसकी आंखों में नींद के खुमार से सुर्ख हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने छुट्टी से पहले दुरैद को पेन किलर का इंजेक्शन दिया था। जरकून भी खादिम चले गए होंगे, मैं ज़रा चेक करके आती हूँ आपके पास। जिमल अपने गर्म शाल लपेटते हुए कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल गई। वो जानती थी कि थोड़ी देर में दुरैद सो जाएगा। जिमल बाहर का दरवाज़ा चेक करने के साथ साथ तबिंदा को भी कॉल करना चाहती थी, क्योंकि वो दुरैद की बेहोशी के वक्त परेशानी में तबिंदा को सारी सूरत हाल बता चुकी थी। जिस बार तबिंदा ने जिमल को तसल्ली देते हुए 1 घंटे बाद घर से निकलने को कहा था। जिमल के मुताबिक तबिंदा को अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मगर वो दुरैद के सामने फ़िलहाल तबिंदा का जिक्र करके दुरैद को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि दुरैद की हालत के पेश नज़र उसका मूड ख़राब हो जाए। वो खुद भी परेशान थी। अचानक दुरैद को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह तबिंदा के लिए ऐसा कह रहा था? आप अभी तक यहीं पर मौजूद हैं? ज़रकून भी अपने घर नहीं गई? तबिंदा से बात करने के जिमल वापस जाने लगी, तब ज़रकून भी को कॉटेज में देखकर हैरत से पूछने लगी, दुरैद पापा की फ़िक्र में आज यहीं रुक गई, आप भी तो अकेली हैं ना? ज़रकून भी का जवाब सुनकर जिमल मुस्कुराई। मामा से भी बात हुई है मेरी, वैसे तो अभी तक यहाँ पहुँच जाती, मगर उनकी दोस्त जो हमारे इस्लामाबाद वाले घर में रुकी हुई हैं, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मामा का अभी थोड़ी देर पहले घर से निकलना हुआ है।
जरकून बी को तबिंदा के बारे में बताने लगी, जो कि थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर के साथ एबटाबाद के लिए निकली थी। बड़ी बेगम साहबा यहाँ आ रही हैं, ये तो अच्छी बात है, मगर रात को सफर करने की क्या ज़रूरत थी। खैर अल्लाह हिफाजत करे और उनको यहाँ लेकर आए। आप जुरैद बाबा के पास जाएं, वो आपको अपने पास मौजूद ना पाकर परेशान होंगे। बेगम साहबा आएंगी तो मैं जाग रही हूँ, आप उनकी फ़िक्र ना करें। जरकून बी की बात सुनकर जिमल मुतमईन होगी और जुरैद के पास कमरे में जाने लगी। बेचैनी और घबराहट से जुरैद की आंख खुली तो सीधा उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। अपने बराबर में सोती हुई जिमल को देखकर वो पानी पीने के गर्ज से उठा। जख्म ताज़ा होने की वजह से चलने में दुश्वारी महसूस हो रही थी, मगर जिमल को उठाने के बजाय जुरैद खुद कमरे में मौजूद डिस्पेंसर से पानी पीने लगा। तब खिड़की की जानिब उसकी नज़र पड़ी। जुरैद पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगा, जहाँ तबिंदा की गाड़ी से उतर रही थी। जुरैद ने अंदाज़ा लगाया और ड्राइवर से बात करके उसे वापस जाने का कह रही थी। ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद उसने तबिंदा को कॉटेज में आने की बजाय स्टोर रूम की तरफ जाते देखा। जुरैद समझ गया था वो बेसमेंट में जाने का इरादा रखती है। कुछ सोचकर जुरैद कमरे से बाहर निकला। पैर पर लगे स्टिचेस को ऐसे सीढ़ियाँ उतरना जुरैद के लिए तकलीफ दे मरहला साबित हुआ था, मगर वह खुद भी बेसमेंट में जाना चाहता था। शायद यही मौका मुनासिब था जब वह तबिंदा से हकीकत का पूछता। बहुत कुछ तो वो जान गया था, लेकिन मैं तबिंदा के मुँह से उसके गुनाह का इतराफ़ सुनना चाहता था, ताकि उसे उसके जुर्म की सज़ा दे सके। उसको खाली देखकर इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आप? यही सोच रही हैं ना कि आपके एक्स हस्बैंड कहाँ गए? जुरैद की आवाज़ पर तबिंदा ने एकदम मुड़कर उसको देखा। जुरैद, तुम यहाँ पर? तबिंदा हैरत से जुरैद को इस जगह पर देख कर बोली। क्या बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है मुझे यहाँ देखकर, या फिर हैरत से ज़्यादा परेशानी हो रही है खावर अंकल को यहाँ मौजूद ना पाकर? जुरैद बोलने के साथ चलता हुआ तबिंदा के पास आया। जुरैद, मुझे नहीं मालूम तुम क्या जानते हो, मगर तुम्हें मुकम्मल हकीकत का इल्म नहीं होगा, इसका मुझे अंदाज़ा है। तबिंदा जुरैद के चेहरे पर सख्ती और माथे पर नुमाया बल देखकर उससे बोली। अंदाज़े तो मैं अपनी तरफ से सारे ही दुरुस्त लगा चुका हूँ, आपसे तो सिर्फ आपके गुनाह का इतराफ़ चाहता हूँ, मगर अभी नहीं जिमल के सामने, ताकि उसे अपनी माँ के किरदार का असली चेहरा मालूम हो सके। जुरैद तंज़िया लहजे में तबिंदा से बोला। किरदार, असली चेहरा? वैसे तुम खुद से क्या अंदाज़ा लगाए हो? बताना पसंद करोगे मुझे? तबिंदा उसके तंज का खूब समझ रही थी। जो कुछ वो अपने दिल में पाल कर बैठा था, वो जानने की ख्वाहिश कर बैठी। मर्दों का घटिया रूप तो बहुत देखा है और बहुत सुना भी है मर्द ज़ात के बारे में, लेकिन कोई औरत भी इतनी घटिया हो सकती है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। शादी से पहले की बात, पहले की मोहब्बत और अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने और डैड ने अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा दिया। आपने डैड के साथ शामिल होकर खावर अंकल से तलाक लेने के बाद उनको इस जगह पर कैद तन्हाई की सजा दी और साथ ही अपनी सहेली का घर उजाड़ कर उसके शोहर के साथ ताल्लुकात कायम किए। मेरी माँ को रास्ते से हटाने के लिए आपने और डैड ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। डैड की हर साजिश में आप भी उनका हिस्सा बनी रही। क्यों, ऐसा ही कुछ है ना तबिंदा आज़म? जुरैद ने पूरी कोशिश की कि तबिंदा को उसका मकरूह चेहरा सही से दिखा सके। अब तुम सब सुनना पसंद करोगे? इतनी हिम्मत है तुम में कि तुम सच बर्दाश्त कर सको। माना कि मैं और आज़म एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन बदकिस्मती से आज़म की शादी समन से और मेरी खावर से होगी। मैं आज़म की मोहब्बत और यादों को अपने दिल से निकाल देती अगर खावर एक अच्छा शोहर साबित होता। जिन दिनों जिमल पैदा होने वाली थी, तब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि खावर किसी औरत के चक्कर में पड़ गया है। उसकी बेवफाई ने मुझे एक बार फिर आज़म की तरफ मुतवज्जा किया। एक दिन खावर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। तब आज़म मुझसे दूसरी शादी का इरादा रखते थे, मगर इससे पहले जो राज तुम्हारे डैड पर अफशा हुआ, उसने आज़म के साथ साथ मुझे भी हिला कर रख दिया। जानते हो कि किस औरत से खावर के ताल्लुकात है? वो औरत कौन थी जिसकी वजह से खावर ने मुझे तलाक दी? तबिंदा अचानक जुरैद से सवाल पूछने लगी, मगर जुरैद खामोश खड़ा उसी के बोलने का इंतजार करने लगा। खावर के निकाह में होने के बावजूद मैंने आज़म से राब्ता रखा। माना कि मैंने खावर से बेईमानी की, मगर मेरे और आज़म के बीच नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रहा। जबकि खावर के समन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का आज़म को जैसे ही इल्म हुआ, तबिंदा अभी अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि जुरैद एकदम चीख पड़ा। खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाएं आप। खबरदार, जो आपने एक लफ्ज़ भी में अपने मुंह से मेरी मरी हुई माँ के बारे में निकाला तो जान ले लूँगा मैं आपकी। सुना आपने? जुरैद तबिंदा के मुंह से समन का नाम सुनकर गुस्से में पागल होने लगा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया होने लगे, जैसे इस इंकिशाफ पर उसकी रूह तक अजियत में मुब्तला हो गई हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी समन की हकीकत ना बताती, लेकिन तुम आज़म को उसका कातिल मत समझो। शादी जैसे पाक बंधन में बंधने के बावजूद मैंने खावर से वफा नहीं निभाई, मगर कभी भी वो गुनाह जो खावर और समन ने तबिंदा की जुरैद की बदलती कैफियत देख कर बोल रही थी, तब समन का नाम आने पर जुरैद ने गुस्से में तबिंदा की तरफ बढ़ते उसके दोनों बाजू पकड़े। बोला था ना, बिल्कुल खामोश कर जाओ, वरना मैं जान ले लूँगा तुम्हारी अपनी इन हाथों से। जुरैद तबिंदा से तैश के आले में बोला था और साथ ही उसने तबिंदा को तह खाने में मौजूद बिस्तर पर धक्का दिया। जुरैद, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो जुरैद। जुरैद तबिंदा को वहीं बंद करके जाने लगा। तबिंदा भागती हुई जुरैद की जाने बढ़ी, मगर तब तक जुरैद तह खाने का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा चुका था। तबिंदा इस वक्त टहलती हुई आज़म के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी।
आज़म हफ्ता भर से समन और दरद के साथ एबटाबाद में मौजूद था। खैबर 6 माह पहले उसको गुस्से में आकर मामूली सी बात पर तलाक दे चुका था। तबिंदा जानती थी वो मामूली बात सिर्फ एक बहाना बनी थी। खैबर के तलाक देने का असल में वजह वो औरत जिसके पीछे उसका शौहर उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। इस मुश्किल घड़ी में आज़म की मुखलिस मोहब्बत उसके सामने आई थी, जो ना सिर्फ उससे शादी करने के लिए तैयार था बल्कि जिमल को भी बाप की हैसियत से अपनाने के लिए तैयार था। मसला सिर्फ समन का था। आज़म समन को तबिंदा अपने बारे में बताकर तबिंदा से शादी करने का इरादा रखता था, मगर तबिंदा हर बार आने वाले तूफान का सोचकर आज़म को रोक देती थी। तबिंदा के इसरार पर ही आज़म ने अपने दोस्त से खैबर और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में मालूमात करवाई थी। तबिंदा जानना चाहती थी इस औरत के बारे में जिसकी वजह से उसका घर उजड़ा था। फ़ोन की घंटी बजने पर सोती हुई सिमर पर नज़र डालकर तबिंदा फ़ोन उठाकर फ़ोन की तरफ बढ़ी। मैं कब से आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। आज़म बताइए ना, क्या बना इस काम पर जो मैंने आपसे कहा था। आपने बोला था कि आज आपका दोस्त आपको आज़म उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें देगा। तबिंदा अपनी रो में आज़म की खामोशी को महसूस किए बिना उसे पूछने लगा। समन। आज़म के मुंह से समन का नाम सुनकर तबिंदा को कुछ समझ नहीं आया था। समन, क्या हुआ उसको, वो ठीक तो है आज़म। तबिंदा समन के बारे में आज़म को पूछने लगी। जब से उसकी और खैबर की तलाक हुई थी, तबिंदा महसूस किया था समन के रवैये में तब्दीली आई थी और तबिंदा से खिंची रहने लगी थी। इस बेगैरत, बेहया, बेशरम औरत का खैबर से पूरे 2 साल से अफेयर चल रहा है। ताबी वो औरत मेरे साथ रहते हुए खैबर की महबूबा कोई और नहीं, समन है। आज़म की बात सुनकर तबिंदा सख्ते में आ चुकी थी और इतना बड़ा खेल खैबर और समन में खेला था, ये तो वो अपने वहमो गुमान में भी नहीं ला सकती थी। वो तो अपने और आज़म के राब्ते पर शर्मसार रहती थी। ऐसी बेशरम बेहया औरत का तो मेरा दिल कर रहा है कि अपने हाथों से मार डालो। तबिंदा को आज़म के गुस्से में भरी आवाज़ सुनाई दी थी। बेहया और बेशरम तो मैं भी हूँ आज़म, जो शौहर के होते हुए भी आपसे ताल्लुक़ रखे हुए थे। कोई भी फ़र्क नहीं है समन और तबिंदा में। तबिंदा शर्मिंदा लहजे में आज़म से बोली। अपने और मेरे तवल्लुक़ को इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात से मत मिलाओ। ताबी, जो तस्वीर उस वक्त मेरे साथ हाथ में मौजूद है, अगर तुम देख लो तो शर्म से पानी पानी हो जाओ। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं इस नीच औरत को एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज़म गुस्से में तबिंदा से बोलता हुआ फ़ोन कट चुका था, मगर अपने सामने ज़रकून बी को देखकर एकदम ठटका। ऐसा तो नहीं है ज़रकून बी कि आप इन सब बातों से अनजान रही होंगी। क्यों बेखबर रखा आपने मुझे समन से मुतल्लिक। आज़म गुस्सा दबाता हुआ अपने सामने खड़े ज़रकून बी से भी सवाल करने लगा, क्योंकि ज़रकून बी के तासरात उसे बता रहे थे कि वो इस मामले से अनजान बिल्कुल नहीं। और इन तस्वीरों में इसी कॉटेज का कमरा शो हो रहा था जिसमें खैबर और समन बाहों में बाहें डाले एक दूसरे में बुरी तरह मदहोश थे। मैं इस घर में नौकर की हैसियत रखती हूँ आज़म साहब। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको इतने बड़े दुख में दो चार करती। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जमा कर नहीं पाई। क्या आपको हकीकत बताकर शर्मिंदा होता देखती? इस बात के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़रकून भी, जिन्होंने इस कॉटेज के छोटे और बड़े मंजर अपनी आंखों से देखती, उसके बाद वह खुद शर्मसारा हो जाती। आज आज़म के सामने ये सब बोलते हुए खुद भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ज़रकून भी की बात सुनकर आज़म गुस्से से भरा वहाँ से निकलता हुआ कॉटेज की सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में जाने लगा, जहाँ पर समन मौजूद थी। आधा मुश्तहिल तब हुआ जब सारी तस्वीरें उसने समन के मुंह पर दे मारी, जिसको देखने के बाद वो बगैर शर्मिंदा हुए अपने गुनाह से साफ मुकर गई। आज़म को इश्तियाल में देखने के बाद समन के मुंह से ये भी निकल गया कि वो भी उसके और तबिंदा के ताल्लुक़ का इल्म रखती है, जिस पर आज़म ने समन पर अपनी सोच जाहिर कर दी। मैं ताबी को अभी से नहीं बल्कि हमारी शादी से पहले से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने और ताबी के ताल्लुक़ से मकरूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ताबी के साथ वैसे खलीस ताल्लुक़ नहीं है जैसा तुम्हारा और खैबर का है। डाइवोर्स के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद मैं ताबी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा और दर्द की तरफ से तुम्हें बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा खून है, मेरे पास ही रहेगा। आज़म गुस्से में समन से बोलता हुआ कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। आज़म, मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बह गई थी। अब खैबर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। दर्द की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे तलाक मत देना। समन आज़म के पीछे सीढ़ियाँ उतरती हुई आज़म का बाजू पकड़ कर बोली, मगर आज़म को समन पर शदीद गुस्सा था। दर्द की कसम खाने पर उसने समन से अपना बाजू छुड़ाकर दूर झटका, जिसके नतीजे में वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। आज़म साहिब देखिए ना, बड़ी बेगम साहिबा के सर से खून निकल रहा है। आज़म, जो कि समन की परवाह किए बगैर उसको नज़रअंदाज करता हुआ आने वाली कॉल रिसीव कर चुका था, ज़रकून बी के पास आती हुई बोली तो अपने से 6 कद के फासले पर सिसकती हुई समन को देखने लगा। आज़म, ज़रकून बी क्या कह रही है? समन ज़ख्मी हो गई है क्या? आज़म, आपको इस वक्त गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। वो दर्द की माँ है। मैं कॉल बंद करती हूँ, आप प्लीज़ उसको देखें। तबिंदा, जो कि ज़रकून बी की आवाज़ सुन चुकी थी, जल्दी से आज़म से बोली, जिस पर आज़म ने इतना किया कि वो डॉक्टर को घर का एड्रेस देकर खुद समन को ज़रकून बी कैसे पर छोड़ता हुआ खुद घर से बाहर निकल गया था। कहाँ चले गए थे दैद आप? दुर्रा जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जिम्मे को जागते हुए पाया, जो कि फ़िक्रमंद लहजे में दरे से पूछ रही थी।